Hello, Bacho. Now, today we will start the reasoning questions of haloalkanes and haloarenes from the question number 11. तो 11th question है which will undergo SN1 faster and why? जैसे कि हमने पढ़ा है SN1 जाने के लिए हम देखते हैं stability of carbocation and stability of carbocation follows this order. 3 degree greater than 2 degree which is greater than 1 degree. तो यहाँ हम सिंपली चेक करेंगे कि कौन सी डिग्री का हेलाइड है एंड वी कैन अरेंज देम इन दिस ऑर्डर. 3 degree is greater than 2 degree which is in turn greater than 1 degree. So first और second में this is the carbon atom and this one is connected with 3 carbon atom. So this one is tertiary halide. और ये जो सेकेंड है जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा है that is directly connected to 2 carbon atom. So this one is 2 degree. तो इसका मतलब ये हुआ कि this 3 degree halide will undergo SN1 faster. दूसरे ऑप्शन में बच्चों this one is 2 degree. एक कार्बन ये है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक ये है. And this is the carbon to which chlorine is attached in the second case. And this is directly connected to only one carbon atom. So this one is 2 degree and this one is 1 degree. So out of 2 degree is more stable than 1 degree. So हमारा 3 chloropentane that will undergo SN1 faster than यहां पर देखा जाए तो 4 की चेन है तो it is chlorobutane. Now question number 12. 12वां क्वेश्चन है बच्चों what is the order of reactivity of alkyl halide towards nucleophilic substitution. तो यहां पर जो हम एल्काइल हेलाइड स्टडी कर रहे हैं यहाँ हेलोजन एटम को चेंज कर देते हैं. जैसे हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लेते हैं RCl RBr and Ri. Let this alkyl group is common. But out of this halogen, if we just check the size, chlorine is small, bromine is little big, and iodine is the biggest. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजन का साइज बढ़ता है और जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के साथ इन हेलोजन्स की वो भी बढ़ेगी और बॉन्ड वीक हो जाएंगे. जितना बॉन्ड वीक होगा उतना आसानी से टूट जाएगा and that will be more reactive. If R is same तो SN1 हो या SN2 हो दोनों के लिए हमारा बॉन्ड लेंथ की कंसिडरेशन होगी. तो आंसर आएगा एल्काइल आयोडाइड is more reactive than alkyl bromide which in turn is more reactive than alkyl chloride. तो लॉजिक क्या है? साइज. Bigger halogen will form weaker bond. Bigger halogen will form weaker bond and thus will be more reactive. तो इसीलिए जो ऑर्डर है alkyl iodide is the most reactive of all. Now question number 13. Neopentyl chloride does not undergo SN2. Why? पहले नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें बच्चों. This is neopentyl and this is chloride.
वैसे तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड एक प्राइमरी हैलाइड है, because the C to which chlorine is attached, that is directly connected to only one carbon atom. मगर ये अकेला कार्बन एटम इतना बल्कियर है, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये क्या करेगा, ये स्टेरिकली हिंडर कर देगा इस कार्बन एटम को जिससे कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से क्या होता है, अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल बिकम्स डिफिकल्ट, सो इट विल नॉट अंडरगो SN2 so easily। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, due to steric hindrance of tertiary butyl group, the attack of nucleophile from the back of weaker nucleophile to the carbon becomes difficult। और स्टेरिक हिंड्रेंस इज द ओनली रीजन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द कार्बन, दिस वन इज क्लोरीन, दो हाइड्रोजन जरूर है, बट द थर्ड वन इज bulkier tertiary butyl group, and this bulkier tertiary butyl group won't allow this nucleophile to attack to this carbon atom। इसको अटैक करना कहां जाएगा, क्योंकि क्लोरीन निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड इफ इट हैज टू अंडरगो SN2, so there is no space left to attack to this carbon atom। 14th है बच्चों, haloalkanes are more reactive than haloarenes। haloalkanes कौन से होते हैं, जैसे एल्केन में R ले लेते हैं, haloarenes में बेंजीन रिंग ले लेते हैं एज ए एरोमेटिक ग्रुप and halogen is connected to it। The question says कि this bond can easily break, but it is difficult for this to break, so it is less reactive। Now the question arises why this one is less reactive। तो इसके दो मेन रीजन हैं। रीजन नंबर एक, ये जो बेंजीन है इसमें रेजोनेंस होता है and this lone pair donates in this benzene ring and this CX bond creates partial double bond character। और डबल बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। So first reason is partial double bond। कैसे डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ बाय रेजोनेंस। और बच्चों सेकेंड रीजन है, ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है, इसमें मोर s कैरेक्टर होता है, sp3 के कंपैरिजन में इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इट इज स्मॉलर, इट इज फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अगर इस कार्बन को देखें, जैसे हम CH3Cl ले लें, तो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दिस वन इज sp3 and thus this is comparatively bigger and it will form weaker bond। जबकि हेलोबेंजीन में जो कार्बन एटम है जिससे हेलोजन जुड़ा है, that is sp2 hybridized। So we have here the two reasons। The first one is partial double bond between carbon and halogen, and the second one is this carbon to which halogen is attached, that is sp2 hybridized, which has more s character,
and thus it forms stronger bond. Next 15th question is plus minus 2 butanol is optically inactive. जैसे कि क्वेश्चन में दिया है प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहीं भी रोटेट नहीं करता, जबकि ब्यूटेनॉल में कायरल कार्बन एटम है. दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दिस शुड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट. अगर यहां पर प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं तो यहां पर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, इट इज अ मिक्सचर. दोनों मिलकर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लेवो रोटेटरी है. एक को हम कह रहे हैं प्लस, एक को कह रहे हैं माइनस. इफ द अमाउंट इज टेकन इन इक्वल प्रोपोर्शन, सो नेट द मिक्सचर विल बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम दो जो इनेंशियोमर्स हैं, ये जो आइसोमर्स हैं इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, ये इक्वल प्रोपोर्शन में है, इसलिए दोनों का नेट इंपैक्ट कैंसिल हो जाता है. बिकॉज ऑफ टू enantiomers which are optically active, and rotates the plane polarized light, in equal and opposite direction. एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, इसीलिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, इट बिकम्स ऑप्टिकली inactive. So this mixture is optically inactive. Now, the question number 16. CX bond length is smaller in haloarenes. बच्चों ये ऊपर भी बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बॉन्ड C और X का ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. एक तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है रेजोनेंस से, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, छोटा होगा. इट कम क्लोजर. And secondly, this carbon to which halogen is connected, that is sp2 hybridized. तो more s कैरेक्टर जिसमें होगा वो ऑटोमेटिकली साइज में छोटा ही होगा. तो बॉन्ड लेंथ CX की, ड्यू टू दैट सेम रीजन, this bond length is smaller. Next is dipole moment of chlorobenzene is lower than cyclohexyl chloride. चलो पहले बच्चों केस लेते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल क्रिएट पोलैरिटी. और अगर हम साइक्लोहेक्सेन की जगह बेंजीन ले लें, अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो कार्बन एटम था साइक्लोहेक्साइल में, दिस वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि बेंजीन के अंदर दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड टू व्हिच क्लोरीन इज अटैच्ड. तो क्लोरीन किससे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा इंडक्टिव इफेक्ट से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 से या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 से. Obviously it will pull electron more strongly from sp3 कार्बन एटम, यानी कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, this one is more electronegative. This one is the first reason.
therefore less polarity will develop. Less polarity will develop. जब चार्ज कम डेवलप होगा तो डाइपोल मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम होगा. And moreover, secondly, this is also been studied by resonance. जो चार्ज डेवलप होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के अपोजिट होता है. इंडक्टिव इफेक्ट से क्लोरीन पे माइनस है और कार्बन पे प्लस है, मगर जब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आता है और रिंग पे माइनस चार्ज डेवलप होता है. तो ये जो चार्ज का डेवलपमेंट है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है एंड ऑल्सो दे आर पार्शियली न्यूलिफाइंग ईच अदर. तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, चार्ज डेवलप्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, charge developed by inductive effect is partially cancelled by the charge developed due to resonance. So this will be the answer. Now the question number 18, which is the most important question. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मींस ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है. इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो चार्ज क्या डेवलप होता है बच्चों? पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो मुश्किलात आएंगी, बिकॉज दिस कार्बन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड if we want to replace this chlorine, this electrophile need to attack to this carbon atom which is itself positive, और positive को repel करता है. तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. मगर फिर भी अगर रिएक्शन आप करवाओगे कुछ हद तक तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, क्योंकि देयर इज एन अनदर फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. एंड बाय दिस रेजोनेंस we have seen the electron goes at its ortho and para position. तो ये प्लस कहां अटैक करेगा? डेफिनेटली माइनस साइड पे, या तो ऑर्थो पर और या पैरा पर. तो अगर आप रिएक्शन करवाओगे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाओगे, तो दैट क्लोरीन will give them the space to attack at ortho and para because it has increased the electron density over there. तो क्या आंसर लिखें? By inductive effect, it is deactivating ग्रुप. अब डीएक्टिवेटिंग क्यों हुआ? ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है ये पॉजिटिव हो गया, बिकॉज कार्बन टू विच Cl is attached becomes positive. भैया पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो अटैक नहीं करेगा, मगर फिर भी रेजोनेंस एक और फिनोमिना होती है. इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाते हैं? ऑर्थो और पैरा पर. बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर गोज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, where electrophile finds an easy attacking site. इसलिए आने वाला ग्रुप कैसा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा. तो रीजनिंग क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में यहीं तक, and the rest I will take in the next video.